Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Libra Ascendant and the predictions for the month of August 2023. So for your Ascendant, the Ascendant Lord Venus is going to turn retro and it will be placed in the 10th house of profession from 7th of August to the end of the month. The Ascendant Lord going retro would mean that you will feel that the pace of life has become stagnated during this month. Most of the Libra ascendant people want things to be done quickly because Libra ascendant is a movable sign. And if moon also happens to be in a movable sign in your birth chart, then the desire to keep on moving and doing things quickly multiplies manyfold. So in this month of August, you will try to move the needle at the professional front quickly, but things will not move. And as a result, you will get into frustration. Saturn is currently transitioning through your fifth house and it is a highly benefic planet for you. During this month, Saturn is going to aspect the 11th house through its seventh aspect. Jupiter is going to aspect the seventh house through its fifth aspect. Sun will be in the 11th house after 18th of August and will remain conjunct with Mercury. So overall, four planets energy is going to get accumulated in the 11th house, and as a result, the whole focus will be on deriving the gains and social networking and spending time with your friends. So basically 11th house will be in the focus. All those people who are engaged in the profession of education, arts, entertainment and speculation related fields will also find this month to be highly beneficial. And if you are a speculator, then the best time frame in the month of August will be from 1st to 6th of August. And if you're a student, then the time to excel in the competitive exams will be from 17th and 18th of August, and then again on 26th and 27th of August. As I said earlier, Sun will be in your 10th house till 17th of August, and then it will move to its own sign, which also means that any long term desire that you had will get fulfilled in the second half of August, and source will be your elder brother, friends, or even your social network. For your ascendant, Mars is the ruler of the seventh house, which is the owner of business as well as second house, and Mars is going to be in the 11th house till 18th of August. So people who are dealing in jobs that are related to food, restaurant, finance and banking, they will get immense benefit till the time Mars is occupying the 11th house. So time frame till 17th of August will be beneficial for all such professions, and after that from 18th to 31st of August, people who are engaged in the business of exports or imports, they will be benefited through this transit of Mars. Jupiter is the owner of sixth house and rules over services. So if you want to excel in your job, then time frame from 1st to 6th of August is favorable for you. Jupiter is also combining with Rahu in the 7th house and it is opening the doors for you for marriage in the transit. But you should wait till the time this Jupiter Rahu conjunction breaks. So time till end of October is not very favorable, and especially if you want to get married within your own caste and religion, then you should definitely wait till the end of October. But if you are marrying intercaste or if you want to marry a person who was born far away from your country of birth, then you can go ahead even before October. Overall, how the month of August is going to shape up, it is adjusting to the slowing pace of life, and do not let the stagnation at the workplace get to you. If you are able to engage yourself in learning new things in the first half of August and focus on speculation in this month, then you can also enjoy the gains that you are going to get in the second half of August. So overall, this will be a fairly good month for you, provided you can keep aside your temptation of moving everything quickly, especially on the professional front. So that's the summary for you for this month. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुला लग्न वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, अगर हम सबसे पहले लग्नेश की बात करें तो लग्नेश शुक्र आपके दशम भाव में बैठे रहेंगे 6 अगस्त से लेके महीने के आखिरी तक। अब शुक्र यहाँ पर वक्री अवस्था में होंगे और शुक्र आपके लग्नेश हैं।
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने कर्म स्थान पे चीज़ें स्लो डाउन होती हुई महसूस होंगी। वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा कर्म स्थान पे, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इसीलिए इस तरह के व्यक्ति बहुत कुंठित अवस्था में आ जाते हैं और बहुत जल्दी वो चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए, आपके लग्न के लिए तुला एक चर राशि है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र भी चर राशि में होता है तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करने की आदत होती है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अपने कार्यस्थल पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल का समय आ पड़ता है। तो आपको यहाँ पर धैर्य बना के रखना है और चीज़ों को जो नहीं मूव हो रही हैं उनकी तरफ अपना पेशेंस बना के रखना चाहिए। आपके लग्न के लिए शनि पंचम भाव से भ्रमण कर रहे हैं और ये आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, और इस महीने में 11वें भाव में सूर्य और बुध की युति भी हो रही है और सूर्य स्वयं अपने स्थान में बैठे हुए हैं। इस 11वें भाव को गुरु 5वीं दृष्टि से देखेंगे और शनि 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो इस महीने का पूरा फोकस 11वें भाव में रहेगा। तो जितने भी लोग सोशल नेटवर्किंग में अच्छे हैं, अपने मित्रों के साथ कोई भी व्यापार वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय में पंचम भाव भी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध की भी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। तो जितने भी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, उनके लिए 1 से 6 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए 17 और 18 अगस्त और 26 और 27 अगस्त बहुत ही अच्छा समय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे बढ़ने की दृष्टि से। सूर्य आपके दशम भाव में बैठे रहेंगे 17 अगस्त तक, और इसके बाद वो स्वयं अपने राशि में चले जाएंगे। एकादशेश का एकादश में होना आपके हर तरह के गेन्स को दिखाता है। तो अगर आपकी कोई बहुत लंबे समय से कोई गेन्स प्राप्ति की है, आपकी कोई इच्छा है बहुत लंबे समय से जो पूरी नहीं हो रही है, तो वो आपकी सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में पूरी होगी। और इसमें आपके बड़े भाई या बहन, आपके मित्र और आपका सोशल नेटवर्क भी कोई रोल निभा सकता है। आपके लग्न के लिए मंगल सप्तम भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव से आप अपना बिजनेस देखते हैं और द्वितीय भाव से आप स्वयं का कमाया हुआ धन देखते हैं। तो मंगल आपके 11वें भाव में 17 18 अगस्त तक बैठे रहेंगे और इसके बाद वो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो 1 से 18 अगस्त तक का समय जितने भी लोग खाने से संबंधित व्यवसायों में हैं, रेस्टोरेंट से में डील करते हैं, फाइनेंस से संबंध रखते हैं, बैंकिंग से संबंध रखते हैं, तो उनके लिए 18 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है प्रोफेशन की दृष्टि से। इसके बाद मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर जितने भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय सबसे अच्छा रहेगा। गुरु आपके 6वें भाव के स्वामी हैं। 6वें भाव से आप नौकरी देखते हैं, तो आप 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक के समय में नौकरी में आगे बढ़ सकते हैं। अगस्त के महीने में गुरु यहाँ पर राहु के साथ युति कर रहे हैं और सप्तम भाव में बैठ के आपके लिए शादी करने के दरवाजे खोल रहे हैं। तो अगर आप स्वयं अपने ही धर्म में या अपनी ही जाति में विवाह करना चाहते हैं तो अक्टूबर एंड तक आप रुक जाइए, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के गुरु के सिग्निफिकेटर्स को दूषित करेगा। नवंबर के बाद आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं या किसी भी फॉरेनर से शादी करना चाहते हैं तो फिर आप नवंबर के पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु स्वयं ही अंतरजातीय विवाह का कारक है। और सप्तम में बैठा हुआ राहु, अगर आप कोई भी अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उसको सपोर्ट करता है। अगर खुद की ही जाति में विवाह करते हैं तो फिर ये राहु आपके शादी में अड़ंगे लगाने का काम करता है। तो इस महीने में अगर आप देखेंगे तो आपका 11वां भाव और पंचम भाव दोनों ही बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस समय में पूरा फोकस आपका इन्हीं दो भावों पर रहेगा अगस्त के महीने में, और ये लाभ प्राप्ति का समय है। आपको अपने प्रोफेशन से भी गेन होंगे और आपको अपने बड़े भाई, मित्रों या सोशल नेटवर्किंग से भी गेन होते हुए दिखते हैं इस महीने में। जितने भी लोग स्पेक्यूलेशन में इंटरेस्टेड हैं, शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए भी अगस्त का सेकेंड हाफ 18 अगस्त से 31 अगस्त बहुत लाभकारी साबित होगा शेयर मार्केट से लाभ कमाने में। खाली अगर इस महीने में जो प्रोफेशनल लेवल पे आपके जीवन में गति कम होगी काम करने की, उसको अगर आप डील कर सकें, ये काफ़ी अच्छा महीना है नई चीज़ें सीखने का और गेन्स को गिनने का। ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।